We will go to this particular exercise. Okay, okay. So I hope everybody is ready with the pen and pencil and paper. Okay, so this is the system I have put in front of you. तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मैंने 3 अप्रेजल लिए हुए हैं, फिर से अप्रेजल ए, अप्रेजल बी, अप्रेजल सी. ओके, 3 पार्ट्स में उनको चेक करने को बोल रहा हूँ और मैं 4 टाइम उनको रीडिंग लेने को बोल रहा हूँ. सो ए अप्रेजल को मैंने पहला पार्ट दिया, he went to that particular standard room, उसने उन्होंने 4 रीडिंग लिए, he came out. Then B went to the same part, took a reading, came out. C came, took a reading, came out. दूसरा पार्ट मैंने A को दिया, वो गए 4, and so on till the last one. So how many readings I have in totality? So these are the 4 multiple. So for A appraisal there are 12 readings, for B there are 12, for C there are 12. In all 36 readings I have. Okay, now I want to calculate gauge R&R. तो चलिए अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचिएगा. For your easiness I have kept the column heading as it is, so try to calculate. So I will be asking this particular box to one company, this particular box to another one, and this particular box to the another one. Okay, just giving probably 5 minutes, you calculate the average range XD bar and R bar. So everybody please try करने से आपको पता चलेगा कि हमको ये आ रहा है या नहीं. So I will wait for 5 minutes now. Anybody would like to volunteer, or should I randomly pick? Okay, nobody from volunteering side. Okay, Sagar, you put yourself in unmute. Would you like to volunteer? Yeah, for this X bar we have calculated for A column. Okay, 0.31. for this one, right? Yes. Okay, No, first average we have calculated. okay. What are the values? 0.31, 0.94, 0.29. 0.31, 0.29, 0.29. Okay, so you have basically rounded off it to the second digit. Yes. So range किया calculate उसका? Yes, 0.04. So are they matching? Yes, yes, they are matching. Okay, now X double bar need to calculate. ठीक है. So सबके लिए एक रिवाइज करता हूँ. तो हमने हर एक ग्रुप का बेसिकली एवरेज निकाला, करेक्ट?
हर एक ग्रुप का बेसिकली रेंज निकाला। रेंज कैसे आया, मैक्सिमम जो है दैट इज 0.33, मिनिमम जो है दैट इज 0.29, उसका डिफरेंस दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.04 एंड सो ऑन। फिर इस ग्रुप का हमने एक्स डबल बार निकाला। एक्स डबल बार क्या होता है, एवरेज ऑफ एवरेज। सो इन तीनों का एवरेज मैंने निकाला तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.298। आर बार क्या होता है, आर बार इज बेसिकली the average of the all ranges. So here it is coming out to be 0.4. So obviously the average will be 0.04. The same thing I have repeated for the, you might be repeated for the appraisal B and the appraisal C. Correct? तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये exactly calculation क्या है। ठीक है, आगे जाएंगे। So ये वैल्यू अभी आ गए हैं। So next one is basically we need to calculate EV। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, हमारा फॉर्मूला बताता है गेज आर एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ईवी स्क्वायर प्लस एवी स्क्वायर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ईवी। तो ईवी का क्या फॉर्मूला है, ईवी का फॉर्मूला है आर बार डिवाइडेड बाय डी टू। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कि ईवी क्या आता है, राइट। फॉर्मूला है यहाँ पे डी टू, यू नीड टू फाइंड आउट थ्रू दिस पर्टिकुलर टेबल। आर बार क्या है, मीन ऑफ आर बार। सो मीन ऑफ आर बार के लिए मैं आपको ये फिर से टेबल दिखाता हूं। D2 निकालिए, मीन ऑफ आर बार पता है आपको, मतलब आपने कैलकुलेट किया होगा, D2 कैलकुलेट किया होगा, उस हिसाब से आप E2 कैलकुलेट कीजिए। नाउ आई विल बी आस्किंग, somebody from SB Engineers, can you unmute? Satish Devakan from Rane Plastic. Rane Plastic, great, okay. So who's speaking? Devakan. Okay. So have you calculated the value of EV? Yes, sir. किती आहे? 0.141. चेक करूया आपण। 0.0 चुकलं काहीतरी। ओके, काय चुकलं बघू शकता का? Mean of R bar आया 0. divided by 2.059. मीन ऑफ आर बार किती आला? 0.29. नाही, आर बारची व्हॅल्यू काय इथं आपण जुन्या याच्यात पाहिली, 0.040 प्लस 0.020 प्लस 0.010, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3, that is coming out to 0.023. 23, करेक्ट। D2 व्हॅल्यू काय आहे, D2 व्हॅल्यू आपण सब ग्रुप साइज वरनं फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला, 2.059, correct. So EV value is 0.023 divided by 2.059, that is coming out to be 0.011, right. I hope it is clear with everyone. Hello, So, hello. हाँ, Yes, actually answer is coming 0.011. I think one more zero is repeated here. Yes. is it so? 0. Yes, yes. Actually, it is 10 repeated here. अच्छा, okay, that might be just neglect that typo error. Yes, yes. So EV हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अभी हम जाएंगे बेसिकली टुवर्ड्स AV। AV का फॉर्मूला क्या है, X बार हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ मीन्स। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ मीन्स, जो हमने यहाँ पे सब X डबल बार कैलकुलेट किया है उसका हमको रेंज निकालना है। रेंज निकालना है मतलब क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम कौन है 0.299, मिनिमम है 0.298। ओके, आई एम जस्ट मूविंग इट टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यस। So X bar difference is equal to range of means. So here it is coming out to be 0.299 minus 0.298, that is 0.001. N क्या है हमारे केस में, नंबर ऑफ पार्ट्स, और R कौन बताएगा मुझे, what is N and R in our case? Fluid controls,
सर स्वप्नील सिद्धवाला. येस N is 4 ना. N is 4 आणि number. R हा. R is 3. ओके उलट सांगितलं तुम्ही. N म्हणजे नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर हा, ऑफ number of पार्ट्स parts. 3 आणि R आहे 3 4. Okay. N is 3, R is 4, K2 is. Can you put yourself on mute, Swapnil? Yes sir. Yeah, thank you. So N is 3, R is 4, K2 is 1 divided by T2, that is coming out to be 0.48. Then we'll try to substitute it the values, and again the AV part is basically coming out to be minus 0.00. Whatever is the EV square करेंगे and the value is basically coming out to be 1.1%. हमारा क्या है basically formula acceptance? If it is less than 3%, it is acceptable. If it is in between 3 to 20%, what was that? Yes, if it is from 10 to 20%, it is conditionally accepted. If it is more than 30%, then it is not accepted. Right? So I hope you are clear with the methodology कि हम range method से basically gauge RNR कैसे find out करते हैं. Right? If anyone has a doubt, please ask. किसी को भी कुछ भी डाउट हो गेज आरएनआर कैलकुलेशन में तो प्लीज पूछिएगा. आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर वेरी n number of templates available on the internet which are Excel based, जहाँ पे आपको खुद सिर्फ रीडिंग डालना है and all this calculation will be done automatically. Or there are some softwares like Minitab also जिसमें all these calculation parts are taken care. But it is very much interesting and understand कि ये हम actually कैसे करते हैं. So while conducting a study, that will basically help you. So calculation part is basically taken care mostly, ready-made available. Right. So Parag sir, what should we do? ओमकार सर, Yes, yes, please. ही जी K2 ची व्हॅल्यू तुम्ही आणली आहे फॉर्म्युला मध्ये हा. K2 एव्ही करताना हाँ. तो फॉर्म्युला मध्ये तो K2 कसा आला, म्हणजे त्याचा बेस काय, फॉर्म्युला तो कसा डिझाइन झाला? अच्छा, ओके. याच्यासाठी ना सर आपल्याला थोडंसं स्टॅटिस्टिक्सच्या बऱ्यापैकी डिटेल्स मध्ये जावं लागेल. बट let me try. Dr. Sir, would you like to give some idea how this K2 came and from where this value is 1 divided by D2? एक्चुअली सुधाकर, मेरा जो पहले वाला एक्सप्लेनेशन था उसको थोड़ा याद कीजिएगा. सिग्मा 2 किस्म का होता है, बोला था ना मैंने, याद है आपको सुधाकर? यस सर, यस. एक है डायरेक्ट सिग्मा, माने कि 30 वैल्यूज है, तो उसको आप 30 वैल्यूज को कैलकुलेटर में डालिएगा तो सिग्मा निकलेगा. उसको मैं बोला था सिग्मा n-1 सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. और एक बोला था जो आपका माने कि 5 सैंपल लेके 10 सब ग्रुप आपने लिया, तो टोटल सैंपल्स आपका होता है 10 × 5 50. ठीक है, तो यानी कि 10 सब ग्रुप है, तो 10 सब ग्रुप का हर एक सब ग्रुप का n = 5. तो उस हिसाब से आप अगर रेंज निकालो तो आपको कितना रेंज मिलेगा? 10 रेंज मिलेगा, राइट, क्योंकि 10 सब ग्रुप है. तो वो जो रेंज है, वो रेंज का एवरेज कीजिएगा तो हम लोग उसको क्या कहते थे? R बार कहते थे, राइट? यस. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ये R बार को अगेंस्ट n = 5 सैंपल साइज अगर आप डिवाइड करो तो आपको एक सिग्मा एस्टिमेट मिलेगा. ठीक है, लेकिन ये सिग्मा एवरेज वाला सिग्मा है. अच्छा, मानिए कि जैसे अब मैंने बोला था कि अगर आप 50 सैंपल का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन निकलो और ये R/D2 वाला अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लो तो आप देखोगे कि आपका जो R/D2 वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा वो जो है वो आपका जो मतलब एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल रहा है. ठीक है, ओके. एवरेज वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको अगर जैसे इधर जो है x बार डिफरेंस, तो x बार डिफरेंस का मतलब क्या है? ये जो रेंज है, ये रेंज है इन बिटवीन द अप्राइजर. एक अप्राइजर का कितना रीडिंग है? 10 × 3 30 रीडिंग्स है एक अप्राइजर का अंदर, राइट? तो वो 30 रीडिंग का एवरेज आप ले लो तो आपको कितना एवरेज मिलेगा? 3 एवरेज मिला.
तो वो 3 एवरेज जो है, 3 जो मतलब एवरेज मिला आपको, वो 3 एवरेज का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकलना चाहो तो कैसे करोगे आप मान लो कि आपके पास मल्टीपल मेनी अप्रेजर है, इस केस में सिर्फ 3 ही है, मानी कि मेनी अप्रेजर है, तो आपको 10 अप्रेजर है तो 10 मिलेगा आपको एवरेज। अभी एवरेज का अगर आप डिफरेंस ले लो तो वो हो गया क्या, रेंज हो गया, एवरेज का रेंज हो गया, ठीक है। Yes. 10 मानी इस केस में सिर्फ 3 ही है, लेकिन अगर आप मानी कि 5 अप्रेजर होता तो 5 डिफरेंस मिलता, तो 5 एवरेज मिलता, 5 एवरेज का हाईएस्ट, 5 एवरेज का लोएस्ट, तो उसका एक रेंज मिलता आपको। तो उस केस में ये एवरेज से हम लोग रेंज आ गया, और वो रेंज को अभी मैं अगर D2 से डिवाइड किया तो वो क्या बताएगा आपको, एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको देगा, ठीक है। और एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, अप्रेजर के बीच में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है, देखिए ये मतलब आपके सामने जो AV स्क्वायर रूट के अंदर जो पहला वाला हिस्सा है x बार डिफरेंस इनटू K2, उसका जो स्क्वायर है उसके अंदर एक एरर छुपा हुआ है। कौन सी एरर छुपा हुआ है, उसके अंदर जो रिपीटेबिलिटी वाला एरर, वो तो तीनों अप्रेजर के अंदर ही था, तो उसको आपको निकलना पड़ेगा, तो ही आपका एक्चुअल अप्रेजर टू अप्रेजर वेरिएशन निकलेगा। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग। लेकिन बेसिक आर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 2 आ रहा है इधर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मेरा पहले वाला जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको आप पहले एक बार देखिए वीडियो को, और फिर दोबारा इसके बारे में सोचिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, जैसे मानिए कि एक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है नॉर्मली 0.001, एक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट नॉर्मली होता है 0.01, थोड़ा वेरी हो सकता है इधर उधर, डायल इंडिकेटर का 0.02 0.01 होता है। तो क्या ये लिस्ट काउंट इज ए पार्ट ऑफ बायस, इंस्ट्रूमेंट बायस? हाँ सर, बायस क्रिएट करता है मेजरमेंट। No. Anybody else? No, it, Yeah, Kasturi. Yes. yeah, it's not a part of the bias. It is not a part of the bias. नहीं अभिजीत जी, it is not part of the bias. उसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट का अगर हम बोलते हैं कि उसका एक्यूरेसी है ±0.001, यानी आप अगर एक रीडिंग जो लिया है वो रीडिंग है 0.531, उसका मतलब वो रीडिंग एक्चुअली 0.532 भी हो सकता है, 0.530 भी हो सकता है, इसके साथ बायस का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्या आपका जो बायस वो अगर एक्सपेरिमेंट के पहले, R&R स्टडी के पहले अगर ये बायस को मैं रिमूव नहीं करता हूं, मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट का बायस को मैं एक्सपेरिमेंट के पहले, R&R स्टडी के पहले रिमूव नहीं करता हूं, तो उसका इफेक्ट हमारा R&R स्टडी के ऊपर क्या आएगा? कैन यू टेल मी? I will be very happy if somebody can answer this question. अगर मैं इंस्ट्रूमेंट का बायस को रिमूव नहीं करता हूं, इंस्ट्रूमेंट का बायस का मतलब क्या है? एक मास्टर का ट्रू वैल्यू है मानिए x, और मैं रिपीटेड मेजरमेंट, जैसे ओंकार ने एक एग्जांपल दिखाया, 20 रीडिंग लिया और उसका एवरेज लिया, तो वो दोनों का अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है बायस, राइट? यानी कि मास्टर सैंपल का रीडिंग अगर x है, बायस के बाद वो रीडिंग कुछ y हो रहा है, तो x माइनस y है बायस। तो मेरा सवाल है, मैं बायस को रिमूव ना करते हुए अगर R&R स्टडी करता हूं, तो क्या वो R&R स्टडी का एरर को बढ़ा देगा? Will it actually increase the error? Anybody? Nobody is. Sir, can I try? Can I try? Yeah, please try. Please, I'm waiting for that. Yes. Yeah.
So, in the bell curve that is created by the bias, Hmm. the readings will move between the actual value and the bell curve, Actual value and and the bias which is created on either sides of the bell curve. no, don't think like that. Think this way, that जैसे हम लोग डिस्कस किया कि रिपीटेबिलिटी एक अप्राइजर का मल्टीपल जो मेजरमेंट्स है उसके बीच में जो वेरिएशन है, एक ही पार्ट नंबर है, मल्टीपल रीडिंग लिया एक ही अप्राइजर से, तो वो है रिपीटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपका रिपीटेबिलिटी के अंदर, अब मानिए कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं उसका अंदर बायस है, तो हर एक रीडिंग मानिए कि प्लस अपसाइलॉन या तो प्लस ए, मानिए कि बायस इज ए, तो हर एक रीडिंग के अंदर प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। लेकिन रिपीटेबिलिटी क्या है? रिपीटेबिलिटी के अंदर ट्रू वैल्यू से डिफरेंस नहीं है, रिपीटेबिलिटी के अंदर आपस में जो रीडिंग्स है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बीच में वेरिएशन क्या है। तो बायस जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, राइट? बायस जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। अगर बायस डिफरेंट होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली आई मीन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो एक बात याद रखिएगा, बायस वाला इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट आप लो, that actually also will come with a bias, so bias has to be removed। लेकिन ये theoretical question था कि अगर आपने R&R study conduct किया with an instrument bias, then repeatability का जो value मिलेगा उसके अंदर जो bias है वो neutralized हो जाएगा over number of readings। Same thing will happen for reproducibility also, क्योंकि reproducibility is what? It is difference between appraiser to appraiser। जैसे हम लोग आपको एक 3 डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, appraiser 1 का, appraiser 2, appraiser 3, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो एवरेज है और सबसे कम जो एवरेज है उसको हम बोल रहे हैं कि appraiser to appraiser वेरिएशन। यानी कि उधर भी बायस जो है it will equally reflect in appraiser 1, appraiser 2, appraiser 3। तो हम जब डिफरेंस लेंगे that is supposed to be getting neutralized, but that this statement is only true over multiple samples। Anyway, मैं एक ही पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिस सब्जेक्ट, अगर आप इसको मिनीटैब या तो कोई सॉफ्टवेयर के आधार पे करो, शायद आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा कि इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें काफी गहराई में स्टैटिस्टिक्स है। और वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉर्मली यू शुड बी नोइंग 3 वेरी सिंपल स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे सुधाकर ने सवाल पूछा था, तो वो उसका आंसर मिलेगा जो पहले हम लोग बताए थे। 2 टाइप ऑफ सिग्मा है, एक है कैलकुलेटेड सिग्मा या तो जो मैनुअली कैलकुलेट करते हैं ओवर ऑल द वैल्यूज, अनदर इज सेम सिग्मा का एस्टिमेट है R//D2, ये दूसरा है। तीसरा है कि एवरेज का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लो, दैट इज ऑलवेज लेस देन ऑल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम लोग जब इसको अप्राइजर वेरिएशन या तो ईवी वेरिएशन जब हम लोग कर रहे थे, वो नॉर्मली हम लोग R का यूज किया, एक है ईवी में, और अप्रेजर वेरिएशन में हम लोग एवरेज वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको यूज किया।